Krishna Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavara Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare. So first of all I offer pranams to our Gurudev, Vishnupad Dandit Swami, Bhaktivedanta, Narayan Goswami Maharaj, Ashish Guru Sri Dandit Swami, Sri Gaurapada Goswami Maharaj, Sri Bhaktivedanta, Madhusudana Goswami Maharaj, all Vaishnavas and Vaishnavis, Dandavats. So today is Brahman Dwadasi, Brahman Mahadwadasi actually. When the Ekadasi Tithi is mixed with the Dasami, that's Purva Vidya Ekadasi, that time no problem. But if the Ekadasi is a little bit mixed with the Dwadasi, right, that time we cannot, it's called impure Ekadasi. That time we transfer the fasting to the Dwadasi. What? What did he say? What did he say? Okay. Anyway, so today is Mahadwadasi. 4 times a year it happens. So today is also appearance of Bhagavan Vamana Dev and also the appearance of Sri Jiva Goswami. Sri Jiva Goswami we hear in Gaur Gyanodaya Dipika. Previously he was Vilas Manja, so very intimate associate of Radhika, one of the 6 Goswamis. His uncles, his father was Vallabh. His father was also a great devotee of Lord Chaitanya. When Chaitanya Mahaprabhu spoke Tattva Siddhanta to Rupa Goswami of Prayag, that time Vallabh was also there. So who could imagine his good fortune? Both his uncles Rupa and Sanatan and his father Vallabh over pure Vaishnavas. In very young age, he met Nityananda Prabhu, and Nityananda took him on this Navadvip Parikrama, showed him all the pastime places of Lord Hari. And even though Navadvip is Gupta Vrindavan, now how is it Gupta Vrindavan? As Krishna is Swayam Bhagavan, then Vrindavan also is the origin and shelter of all other holy places. Ayodhya must be there, Vaikuntha must be there. How is it there? In which way? So Nityananda showed all this, because Nityananda is Dhameshwara, presiding deity of the Dham. So he himself showed the Jiva Goswami all this. Afterwards, Bhaktivinoda Thakur in his meditation, his Bhakti Yoga Samadhi, he saw all this, and he wrote that Navadvip Dham Mahatmya. Then Jiva Goswami asked very nice question, if Vrindavan is, if Navadvip is Vrindavan, no difference, why should I leave Navadvip and go to Vrindavan? If it's the same, I should just stay here. Then Jiva Goswami, Nityananda replied, because Mahaprabhu has given Vrindavan to your family. That is your, like Mahaprabhu's order. And also, there in Vrindavan, Ras can be tasted directly. In Navadvip, it's a little indirect. Indirect. By Navadvip, a little rope is there. By thinking and superimposing, one can realize these things. But in Vrindavan, it's directly present. So on the way, Jiva Goswami, he came to Varanasi and there he studied the Shastras, as well as Sanskrit, Vyakaran, all grammar and everything from one Madhusudana Saraswati. Afterwards, by his influence, he also became so much into Vaishnavism. Then he came to Vrindavan. So especially Jiva Goswami wrote
more than 25 books, especially with this Harinam Yakaram. When Chaitanya Mahaprabhu came back from Gaya, before Chaitanya Mahaprabhu was teaching Brahma and also Nyaya and other subjects, but mainly Vyakaram. But after taking initiation from Vishwapuri, then when he came back, then the students again came. But Chaitanya Mahaprabhu would explain everything in relationship only to Krishna. They would ask him, what is the Dhatu? If you read Chaitanya Bhagavat, it's all description is there. What is Dhatu? Dhatu means the verbal root. Then Chaitanya Mahaprabhu next to say, the Dhatu is Krishna. Dhatu also means life, air. Dhatu means many things. Chaitanya Mahaprabhu would explain everything in relationship to Krishna. So to save the Vaishnavas the chance of forgetting Krishna while learning Sanskrit, Jiva Goswami composed another commentary. He also wrote a commentary on Brahma Samhita, commentary on Ujjvala Limani, commentary on his Bhakti Rasamrita Sindhu. He wrote a commentary on the Bhagavatam. He also wrote, of course, the Sandarbhas, of which 6 are most prominent. The Bhagavad Sandarbha, Tattva Sandarbha, Kriti Sandarbha, 6 Paramatma Sandarbha. So much he wrote. Madhav Mahotsav, all this. This Jiva Goswami wrote this big book on the pastimes of Krishna. What's it called? Gopal Champu. So not just tattva, but also so much rasic literature he wrote. Guru Maharaj would say Jiva Goswami very important. Why? If you see in Bhagavatam the prayers of Uddhav said Shruti Vijrame. The personified Veda is also searching for Krishna. Can they find? If they can find, why are they searching? So it means Krishna Tattva, it's there in the Vedas, but very hard even for the Vedas to find. So this Gopi Bhav, especially, that is beyond the Vedic thought. Ordinary person cannot find. Even though like ghee is present in milk, but you cannot see, but it's there. But have to churn, then the butter comes out. In the same way, everything is there in Shastra, but where is it there? Rup Sanatan don't give so much attention to that, they just describe their internal moods. So Jiva Goswami, he established that whatever Rupa Sanatan wrote, whatever Chaitanya Mahaprabhu gave, that is fully there in the Shastra. So very important. Like Guru Maharaj said, if nectar is there, but nectar has no pipe protecting it, then any bad thing may come in the nectar, or the nectar may become lost and dispersed. So like water needs a canal, Jiva Goswami's writings like a canal of tattva to protect everything given by Mahaprabhu and Rupa Goswami. Therefore, he also showed many things, how Rupa Sanatana, Tattvacharya's, followers of Madhvacharya, many things he gave in his Sandarbhas. So in Priti Sandarbha, for example, he established the goal of life, Prema. In Bhagavad Sandarbha, he established what is the real meaning of the Srimad Bhagavatam. In the Paramatma Sandarbha, he established where the Jiva come from, what are the qualities of the Jiva. The Jiva is Paramatma Vaibhav, the manifestation of the Paramatma. Sing River, Paramatma. In Tattva Sandarbha, he established the 10 different types of Praman, many things he described. So Jiva Goswami's Vilas Manjari, so how much dear he is to Radha Krishna. And after Rupa and Sanatan disappeared, he became head of this, what we call Vaishnav Samaj, Vishwa Vaishnav Raj Sabha. He became the head of that. So after Rupa Sanatan, Jiva Goswami protected the Sampradaya. Especially he inspired Narottam, Srinivas and Shamananda. Under the guidance of Jiva Goswami, they preached the conception of Rupa and Raghunath
throughout India, especially Bengal, Odisha, and from there, Manipur, and from there it spread to the whole world, actually. So what can we say? Sri Jiva Goswami Pad. Today is also the appearance day of Vaman Day. Like Jiva, Jiva means very small, but becomes so big can control even Bhagavan. You should not think because the Jiva is small, the Ananda that the Jiva tastes is also small. No, it's unlimited. It even can capture Krishna. In the same way, Vamandev looks very small, but Trivikram became unlimited. So Vamandev, he's also mentioned there mostly in the 6th canto. We were very fortunate to hear this guitar just a few days ago in Imlitala. The demigods had become weak. Indra had disrespected many times. Indra became disrespectful of his own guru. Sometimes also one person, Garland, had come from Vaikuntha via Durvasa Rishi, and Indra, little foolishly, he gave that to his elephant, and the elephant, what he knows the glory is. So he trod on that mala. Therefore, Durvasa Rishi cursed the demigods to become Shrihi, devoid of all opulence. On the other hand, the demons headed by Bali Maharaj became very powerful by Guru Bhakti. By the blessings of Sukracharya, Bali achieved one like almighty chariot full of weapons. He conquered the entire universe. Especially he took the celestial realm and Swarga from the demigods. So, both the demigods and the demons, same father, Kasab Rishi, only 2 different mothers, Diti and Aditi. So Aditi became very sad. The demigod sons now have no place to live. They become like bankrupt, no home. So taking advice, she performed the Payovrat. I think it's like 5 days, is it? 12 days, thank you. 12 days of drinking milk, 12 days don't become angry, 12 days don't sleep during the sandhyas, don't eat anyone's remnants, don't worship without washing feet, like this, don't abuse anyone, like 12 days. So Bhagavan became happy. What you want? Please appear as my son. So Bhagavan appeared in the celestial planets amongst the demigods. Bhagavan appears in all species of life. To give mercy to the aquatics, he appears as Matsya. To give mercy to the demigods, he appeared as Brahman. To give mercy to the humans, he appears in the forms of Ram and Krishna. Like this. So Bhagavan not just give mercy to humans, he gives mercy to all species. Therefore he is known as Aditi Nanda, the son of Aditi. So first he appeared in a 4-handed form, then he came in a very charming Brahman form, dwarf. Our general experience of dwarves is they are not very attractive. But Vamandev was not like that, supremely attractive, golden complexion. So also because Aditi was Brahmani, when he appeared, all demigods gave him donations. Like Parvati gave him a begging bowl, the sun god gave him the Gayatri, Brahman thread, someone gave him shoes, someone gave him umbrella, many demigods gave him donation. And Bali went to give Vamandev went to give mercy to Bali Maharaj. Bali Maharaj is the grandson of Prahlad. Prahlad's son Virochan, Virochan's son Bali. So he appeared in Demon dynasty. But sometimes Vaishnava also appear in Demon dynasty. Just like gold you may sometimes find even dirty place. Sometimes very high place, people also comes in low place. So, Bali, now he is one of the Mahajans.
the 12 gurus of the Vedas. Mahajam Yena Katena Sapanta. It said only 12 people know what is religion, one of them is Bali. And we heard from Sadhu Maharaj, he is the guru of Atma Nivedanakya Bhakti. The guru of surrendering everything to Hari Guru Vaishnava. So he is very worshipful. But Bhagavan, but sometimes wealth can be danger. Too much wealth, too much beauty, too much education. Sometimes this causes one forgetfulness of Bhagavan. So even though it looks like Vamadev, in one sense, deceived Bali, but actually gave him great mercy. Our problem is we have many other things to think of except Krishna. We have family members, we have bank accounts, we have mobile phones, we have many things to think about. So Krishna's mercy is that he takes all these things away. Anugrahaya. Krishna's mercy is he removes these things. Therefore Krishna is also called Sri Hari. Hari means one who takes away. But Krishna never takes away good things, he only takes away impediments to us. Guru Maharaj said one time, Yudhisthira Maharaj worshipped Krishna. I want 3 benedictions from you. He asked Krishna, and Krishna was a little surprised because devotee never asked for material things. What do you want? I want to marry the most beautiful woman in the world. That is Draupadi. Okay, what else? I want to become king of the world. Something like this. So Krishna gave all benedictions. Then he asked, Yudhisthira, this is very strange. My devotee never asked for anything. Then Yudhisthira said, because Krishna, people fear to worship. They fear to lose everything. But I want to show the world, if you worship Krishna, you'll get everything. So anyway, Bali Maharaj, he had that position, and he was giving charity. Because on the strength of Guru Bhakti and Brahman Bhakti, he became king of the world. So he was doing yajna to satisfy Vishnu and at the same time giving charity. Because anything we do for Bhagavan, if there's no distribution of prasad, it's considered a tamasic. So anyway, we'll hear from Maharaj when he was giving charity. That time Vamadev appeared, very attractive and very effulgent like billions of suns. Then Bali felt so much happy. Bali felt so much happy. Welcome, welcome. This was Vishnu, he could not understand by Vishnu Maya. But this was some great personality. He could feel that. Then he asked, what donation can I give you? Then Vamadev remained silent. He's teaching us only one person is poor in this world, that person who asks for something. So because he was not expressing his desire, then Bali Maharaj said, one who asks donation from me should never have to ask another person. Means I will give enough wealth to satisfy your whole life. But still when Vamadev not said anything, Bali Maharaj, oh, maybe you want gold, maybe you want silver, maybe you want land, villages, city, kingdom. Try and stay awake. But still he not answered, maybe you want a Brahmin bride, I can give that, I can arrange that. So finally, he said, just give me 3 steps of land. Bali Maharaj said, oh Brahman, because you are small, maybe your intelligence is... I can give anything and you are asking for 3 steps of land. Then Vamadev said some nice instructions. Because of uncontrolled mind and senses, someone may get all the wealth, all the gold, all the grains, all the cows, everything in the universe, but still not be happy. So real wealth is self-satisfaction. I only need 3 steps of land. Then Bali Maharaj become astonished. I give him millions of dollars, but no one ever asked me to take some kalpa. So he thought, this is very wonderful. So Shukracharya was watching. What is this? Who is talking so much?
when he meditated, Sukacharya could understand this is Vishnu. So Sukacharya spoke to his disciple. This is Bhagavan Vishnu. He has come in disguise. He has come to take away everything. Don't give him anything. Otherwise he'll make you a pauper. He'll make you to a zilla. And then Sukacharya spoke some things. Sometimes to tell a lie is not a sin. To protect your livelihood, to protect cow and Brahman, it's not a lie. But Bali Maharaj was great Vaishnava. He thought everything owned by Vishnu. Everything is his property. Everything is his potency. With one slap he can take. Also everything is his. So he's begging from me, this is my glory. So even though Shastra says one should never disobey Guru, still if Guru gives some instruction against Bhagavan, against Bhajan, then also you can give up. One should never disrespect Father, but Father gives wrong instruction, then Prahlad not listen. Wife should never give up husband, but gopis gave up like this. So Bali Maharaj ignored Sukacharya, who cursed him. You will lose everything. So then, of course, Bhamandev became huge. He became Trivikram. With his first step, he took to the planet of Brahma. His toenails pierced the coverings of the universe. The Ganga came through. With his second step, he took to the bottom planet. With 2 steps, he took the whole universe. Then he so much chastised Bali. Oh Bali, you are a cheater, a thief, a liar. You promised me 3 steps, but you did not give. And he bound him, Bhagavatam says, like a crow. Bound him, so much disrespect him, so much spoke wrongly, like this. But Bali was great, Vaishnava, he never gave up his patience. He thought I'd given everything to Bhagavan, still he's not satisfied. What he wants from me? Oh, he thought I not gave myself. So very intelligently he said, Bhagavan, you keep your footstep here. That's why Vaishnavas keep Sika. And ladies in Vedic culture keep long hair because this place is reserved for Bhagavan. In this way, Bhagavan satisfied him by keeping his lotus feet, which is rarely achieved even by the demigods on the head of Bali. And Bali actually achieved all perfection by this. So we can finish here, but today is many good and wonderful day. What can we say? Brahman Dwadasi Ki. Sujit Goswami Maharaj. Sri Chaitanya Prabhu Bande Nityananda Saboditam Sri Nanda Nandanam Bande Radhika Charanadvayam Gopi Jana Samajuktam Vrindavana Manohar Chale Sivikramane Balimadhuta Vaman Padanakhanira Janika Janapavan Kesavadhirtha Vamana Rupa Jaya Jagadisha Hari Jaya Jagadisha Hari Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavin Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sarvagre Madhya Gurupad Padma Nikla Prishtam Vishnupad Ashtotar Sasri Bhakti Jivan Janardan Gosai Maharaj Nikla Prishtam Vishnupad Ashtotar Bhakti Vedant Narayan Gosai Maharaj
तथा समस्त रूपानुगुण वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए है की कृपा की प्रार्थना करते हैं। उपस्थित समस्त जन मातृजन सभी के प्रति वंदन अभिनंदन। आज भाद्र मास शुक्ल पक्ष श्रवण नक्षत्र विजया महाद्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त में भगवान वामन देव का आविर्भाव। इसलिए जिस द्वादशी में श्रवण नक्षत्र का थोड़ा भी योग हो जाए, यहाँ तो बहुत है, करीब करीब 4 घंटा के आसपास योग है। आज जो द्वादशी तिथि है वो करीब 2-2:30 बजे शेष होंगे रात्रि में, और श्रवण नक्षत्र 10:30 बजे रात में आरंभ हो जाए। यहाँ तो बहुत काल श्रवण नक्षत्र और द्वादशी तिथि का योग है, बहुत समय तक योग है। यहाँ तक कि थोड़ा भी अगर योग हो तो भी वह द्वादशी तिथि करोड़ों एकादशी से भी अधिक पुण्यदायक है, अधिक उसकी महिमा। इसलिए श्रवण नक्षत्र योग होने के कारण हम लोग इस तिथि को पालन करें, क्योंकि इसमें वामन भगवान का भी भाव हुआ है। श्री वामन एक भगवान के अद्भुत रूप है, जो भगवान छल करते हुए बलि महाराज से सब कुछ ले गए। जो भी वो प्रत्येक वस्तु भगवान का है, वो जैसे चाहे उसका प्रयोग करें। कई बार भक्त उनको दे देते हैं, कई बार भक्त से मांग के देते हैं, लेकिन उनका सब लेना देना भक्त के साथ है। बलि से इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि भक्त है, और भगवान भक्ताधीन है। भक्त पर अपना दबाव नहीं बनाते, भक्त के ऊपर अपना जोर जबरदस्ती नहीं दिखाते। लेकिन फिर भी कभी कभी पहुंचती है, छीन भी लेते हैं। जैसे श्रीधर से महाप्रभु जी छीन झपट के लेते हैं, कुछ वो दे देते थे और कुछ एक अपने सुखा देते। दो दिन कहना जाते, कुछ दिए और कुछ बोले ब्राह्मण इसको क्या करेंगे, मतलब बैग में झोला में डाल दो, तुम्हारे पास बहुत है, थोड़ा दिया था। ऐसे करके छीन करके उनकी वस्तु तो बलि महाराज महाभागवत है, प्रहलाद जी के पौत्र हैं। इसलिए भगवान की महिमा को दिखलाए। जब देवासुर संग्राम हुआ, क्योंकि समुद्र मंथन देवतासुर दोनों ने किया, लेकिन भगवान ने अमृत केवल देवताओं को पिलाया, असुर वंचित हो गए। इसलिए क्रोध में आ गए, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई, छल हुआ और लड़ गए। भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में बलि महाराज पराजित हो गए, घायल हो गए, एक प्रकार से मूर्छित हो गए, और बाकी कितने देवता सब मारे गए, कितने दैत्य सब मारे गए। तो इनके गुरु शुक्राचार्य जी आए, वो भृगु वंश में जन्मे, कुछ कोटि के ब्राह्मण ने। भगवान ने शुक्राचार्य जी के लिए कहा वो मेरी विभूति है। भागवत में, भगवत गीता में कहते हैं कवि नाम सुना कवि, कवियों में, विद्वानों में, बुद्धिमानों में शुक्राचार्य। शुक्राचार्य शिव जी से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की।
ऐसी विद्या बृहस्पति जी के पास भी नहीं है। इसमें उनका पुत्र कच्छ इनसे सीखने आया और उनको दे दिया भी विद्या। तो गुरु बड़े उदार होते हैं, देते हैं। तो उन्होंने अपने विद्या के द्वारा, मृत संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य सब दैत्यों को जीवित कर सब मर गए थे। भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में कहते हैं कि इतना क्रोध था उनमें कि सिर कटने के बाद भी धड़ से युद्ध कर रहे। दृष्ट सिरो अचीवी, जैसे किसी देवता ने किसी दैत्य का सिर काट दिया तलवार से युद्ध करते हुए, सिर उधर गिर गए, वो अपने आंख से उसको देख रहा है और उसका धड़ तलवार से उसको मारने जा रहा है। आप सिर कहीं है लेकिन वहां से भी देख करके धड़ को भेज रहे हैं, मार उसको। ऐसा नहीं करते। तो जब शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किए तो ऐसे दैत्यों को लगा जैसे हम लोग सो रहे थे और उठ गए। जैसे कोई व्यक्ति खूब गहरा नींद में सोया हो और नींद टूटने के बाद जैसे उठ बैठे, तो उनको ही नहीं लगा कि हम मर गए। उनको लगा हम सोए थे, गहरी नींद में थे और जीवित हो गए, मतलब जग गए, सब खड़े हो गए। बाद में पता चला कि हमें मार दिया गया था। तो सब मिलकर के विचार के क्या करना चाहिए। तो बलि महाराज उस समय जितने भी साधु संत, विशेष करके ब्राह्मण लोग जो तंत्र मंत्र में यज्ञ आदि में निष्णात है, उनको खूब आदर दिए। शुक्राचार्य उनको बोले कि अपनी वृद्धि करना चाहते तो वैष्णव ब्राह्मणों की सेवा करो। कुछ सेवा किए। तब ब्राह्मण प्रसन्न हुए, बोले शुक्राचार्य बोले कि हम आपसे प्रसन्न हैं, आपके लिए यज्ञ कराएंगे। तो यज्ञ होगा विश्व जीत, विश्व में जो भी होगा सब पर आपका शासन चलेगा, सबको आप जीत लेंगे। तो शुक्राचार्य ने यज्ञ कराए और जब आहुति दिए तो यज्ञ भगवान प्रसन्न हो गए। अमन कुंड से एक रथ प्रकट हुआ, स्वर्ण का रथ है, सुंदर, उसमें घोड़े जुटे हुए कई, और उस रथ पर अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए, युद्ध की सामग्री, सिर पे लगाने का टोप, कड़ासा, भाला, टेकना, जितने प्रकार के अस्त्र होते हैं, शक्ति, ये सब के सब उसमें रखे। बलि महाराज इसको धारण किए और पहने एक शंख उनको बजाए। उनके दादाजी प्रहलाद महाराज आ गए, जो बड़े सुंदर लंबे लंबे, जिनके हाथ पैर लंबे शरीर, अपने पोता को गले से लगाए, आशीर्वाद दिए और एक अस्त्र शस्त्र बल से इतना शक्तिशाली हो गए कि इनके तरफ कोई आंख उठा के देख भी नहीं सकता। देवता लोग कांपने लगे, घबराने लगे। और एक अभी स्वर्ग में पहुंचे नहीं, अपने स्थान से शंख बजाए और उसकी ध्वनि सुन के देवता लोग स्वर्ग से निकल गए। बोले निकल जाओ तो जान बचेगी, अगर घेर लिया तो बहुत भयंकर मार मारेगा। जैसे पता चल रहा है कि शत्रु आ रहा है हमारे घर में, हमारे किला में घुसने के लिए, बड़ा बलवान है, तो बुद्धिमान लोग जब देखते हैं कि मैं इनसे लड़ नहीं सकता तो पीछे के दरवाजा खोल के निकल जाते हैं। तो वो लोग ऐसे ही निकल गए, सब भाग गए, इधर उधर भागने। बृहस्पति जी से बोले गुरुदेव क्या करें? बृहस्पति बोले इससे भागने में भलाई है, क्योंकि बलि जो है ब्राह्मण भक्त है, वैष्णवों की सेवा करता है और भगवान का भक्त है। तो ऐसे भक्त कैसे बलि से तुम लड़ नहीं सकते, और अभी समय तुम्हारा अनुकूल नहीं है, क्योंकि जिधर में वैष्णव होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, भगवान होते हैं, जीत उनकी होती है। तुम्हारे पास ऐसा भी कुछ नहीं, क्योंकि उन लोगों को दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा हुआ,
एक बार भगवान के प्रसादी का वेलना किया तो उसका भी एक है, तब बोला तुम लोग इसे लड़ नहीं सकते, श्रीहीन होकर के भी रहना पड़ेगा और समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि सब समय प्रतिकूल नहीं होता। अभी खराब समय चल रहा है, 10-20-25 साल के बाद अच्छा दिन भी आ सकते हैं, तो जब अपना दिन आएगा उस समय युद्ध कुछ करना, अभी युद्ध से नहीं जीत सकते, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। ये सब इधर उधर छुप गए, कोई डर के मारे बाहर नहीं निकलता, पकड़ लेगा तो मारेगा नहीं, बांध करके कमरा में बंद कर देगा दैत्य लोग, फिर बंद करके कैद होकर के जीना कितना कष्टमय होता है। कभी भोजन देगा, कभी नहीं देगा, कभी आएगा 2-4 डंडा मारेगा, क्योंकि हम लोगों ने इनको बहुत सताया है, तो बदला लेने के लिए हमको भी खूब टॉर्चर करेगा, इसलिए डर के मारे छुप के रहते हैं, कोई रास्ता में ज्यादा निकलता नहीं। निकलूंगा कोई पकड़ ले, बलून हुआ, कुबेर हुआ, इंद्र हुआ, जमराज हुआ, कोई भी पकड़ में आ गए तो बलि तो सच कुछ नहीं करेगा, थोड़ा दयालु, लेकिन उसके जो चमचे लोग हैं, उनके जो सेवक हैं, वो बहुत मार मारेंगे। तो पहले की बात याद करेंगे कि तुम लोग हमें सब ठीक है, हम लोग कैसी पिटाई के, यहाँ तक लोग अपने माता के पिता के पास भी नहीं आते, तो कोई पकड़ न ले। तो उनकी माँ जो है अदिति, वो बहुत दुखी हो गई, क्योंकि हमारे इतने अच्छे अच्छे पुत्र, मैं उनकी माँ हूँ, हमारे पुत्रों में सारे गुण है, सौभाग्य है, कोई सूर्य है, कोई वरुण है, कोई कुबेर है, कोई इंद्र है, ऐसे ऐसे हमारे पुत्र है, और ये सब मारे मारे पुत्र है। तो कश्यप मुनि के पास आए और बोले कि सब आपके संतान है, असुर भी आपके संतान है, देवता भी आपके संतान है, और जो पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी प्राणी है सब आपसे उत्पन्न हुए, क्योंकि कश्यप की अनेकों पत्नियां, उन पत्नियों से अलग अलग प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुए, पेड़ पौधा से लेकर के कीट पतंग, गरुड़, सर्प, कद्रु आदि से जो हुए सब कश्यप की पत्नियां, उनसे सब जन्म लोग, उन्हीं के परंपरा में सब। अब आप सबके पिता हैं, आपका सबके प्रति स्नेह है, प्यार है, ममता है, लेकिन हम केवल देवताओं, मैं केवल देवताओं की मां हूं, और हर कोई अपने अपने संतान को सुखी देखना चाहता है। आज मेरी स्थिति है कि हमारे संतान बहुत कष्ट में, इसलिए आप ऐसा कुछ करिए कि हमारे संतानों का कष्ट मिट जाए, उनका खोया हुआ स्वर्ग जो कि बलि ने हथियार लिया, बलि ने कब्जा कर लिया, वो मिल जाए, ऐसा कुछ करिए। कश्यप मुनि कहने लगे कि देवी, व्यक्ति ममता में, आसक्ति में, स्नेह में बंध करके अपने पराये का भाव रखता है, ये मेरा बेटा है, उसका बेटा है, ये मेरी वस्तु, उसकी वस्तु है, ये सब तेरा मेरा ही सबको बांध रखा। देवी इससे ऊपर उठो और निस्वार्थ भाव से सबका कल्याण सोचो। ठीक है, हमारे पुत्रों का कल्याण हो, लेकिन दूसरों का भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ठीक है, तुम बहुत दुखी हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। जब मैं सृष्टि आरंभ कर रहा था, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि का पुत्र मैं कश्यप हुआ, जो देवहूति के पुत्री से मेरा जन्म हुआ, कला से इनका जन्म हुआ। तब मैं उसमें सृष्टि आरंभ करना चाहता था, परिवार का विस्तार, हमारे वंश बढ़े, हमारी कोई संतान नहीं थी, तो उसमें ब्रह्मा जी के आदेशानुसार उन्होंने हमें एक उपदेश दिया था, एक व्रत का, उसका हमने पालन किया था। उस व्रत को अगर आप पालन करेंगे तो आपको ऐसा संतान होगा, एक ऐसा पुत्र होगा कि आपके पुत्रों का राज लौटाला। आप उस व्रत को करिए, उसका नाम है पयो व्रत।
पयोव्रत इसलिए नाम है क्योंकि वह व्रत केवल दूध पी करके किया जाता है, केवल दूध का आहार, दूध का भोजन, कोई रोटी दाल चावल सब्जी पकौड़ा कचौड़ी मिठाई मसाला नहीं, केवल शुद्ध रूप से एक बार जितना इच्छा हो जितना पी सकते उतना दूध पी लो और बस, और कुछ ग्रहण नहीं करना। पवित्रता से रहो, झूठ मत बोलो, स्नान आदि से पवित्र रहो, किसी का चुगली मत करो, किसी ऐसे लोग जो पतित हैं गिरे उनसे ज्यादा बात मत करो। इस प्रकार नियम से 12 दिन यदि पालन करते हैं तो आपका एक बालक एक पुत्र हो। तो माता ने बात व्रत का पालन किया, दूध पी करके, और व्रत की पूर्णाहुति पर जब व्रत 12 दिन का हो गया, 12 दिन व्रत अनुष्ठान हुआ, रोज सुबह उठती हैं और बाहर चली जाती है खुले स्थान में, वहां देखती हैं कि कुछ ऐसा जगह जहां पर शुकर ने पैर से खोद दिया, शुकर होते हैं तो पैर से जमीन को खोदते हैं, और जो स्थान शुकर के द्वारा खोदा होता है वो मिट्टी पवित्र मानी जाती है, क्योंकि पृथ्वी को उद्धार बराह भगवान ने किया है। तो बराह पृथ्वी का बड़ा संपर्क है, संबंध है, पृथ्वी जो है बराह की पत्नी है। तो जहां पर बराह लौटते हैं, पृथ्वी को खोदते हैं अपने पैरों से, वो जगह मिट्टी पवित्र माना जाता है, क्योंकि बराह जब भगवान किसी भी जोनी में जाते तो जोनी को धन कर देते। शुकर को लोग बहुत हे दृष्टि देखते हैं, लेकिन शुकर को बहुत पवित्र ही माना है, विशेष करके जंगली शुकर जो जंगल में रहने वाले होते हैं वो शुद्ध होते हैं, वो लोग उल्टा पलटा चीज नहीं खाते, ऐसा नहीं होता। तो वहां की मिट्टी को उठा करके पूरे शरीर में लगा और स्नान कर, क्या जंगल वाला नहीं करते, जंगली सुअर जो होते हैं उनको जंगल में सब नहीं मिलता। 2 तरह के सुअर, एक ग्राम का जो गाँव में होता है, एक जंगल में रहने वाले सुअर होते हैं जो बड़े बलशाली होते हैं, वो सब 7 पत्ते से जंगली चीज खा करके जीवित होते हैं। देखेंगे जंगली सुअर होते हैं शेर के साथ में, हिरणों के साथ में वन में घूमते रहते हैं, उसको लोग जाते शूटिंग करते, शिकार करते हैं। इसलिए हिरणनाथ ने बराह भगवान को जंगली सुअर कहा था। जब बराह हिरणनाथ का युद्ध हुआ तो युद्ध से पहले बोला अरे जंगली सुअर, वन गोचरा मृगा, वन में रहने वाला मेरे पशु, मेरी चीज को कहाँ लेके जा रहा है, मेरी बस को। तो उसने मुझको गाली दिया कि हाँ मैं जंगली सुअर हूँ, लेकिन तुम जैसे गांव के कुत्तों को ढूंढता हूँ। गांव के कुत्ते जब जंगली सुअर पर आक्रमण करते तो जंगली सुअर बहुत ताकतवर होते, उसको ऐसे मारते पैर के अगले भाग से, इस द्वारा से भी कुत्ता डर के मारे उसके पीछे नहीं जाता, भाग जाता है, तुम दबा के घर चला जाता है। तो शिकारी कुत्ते होते हैं तो जंगल में जाते हैं अपने मालिक के साथ, वो लोग जब शिकार करते हैं तो कुत्ते भी उन पशुओं पर आक्रमण करते हैं, लेकिन जब शुकर उसको मिल जाता है तो शुकर बहुत जोर से मार देता है, ऐसे ताकतवर होता है। तो गाँव में जो कुत्ते होते शिकारी कुत्ते शुकर से नहीं लड़ते, डरते हैं, तो प्राण ले लेगा, तो बहुत शक्तिशाली होता है। इसलिए बराह भगवान बोले कि मैं जंगली सुअर हूँ लेकिन तू गाँव का कुत्ता है, आ जा, मैं तुमको ही ढूंढ रहा था। गांव का सिंह, ग्राम सिंह, वहां कुत्ता ने बोले ग्राम सिंह, गांव का शेर, और गांव का शेर कुत्ता होता है। और विशेष करके दरवाजे पर, अपने घर के दरवाजे पर यदि वो है तो फिर बहुत जो भी हो, उस मिट्टी से अदिति देवी ने स्नान किया और धूप दीप नैवेद्य वस्त्र यज्ञोपवीत आदि जो 16उपचार से भगवान की पूजा रोज दिव्य पुरुष सूक्त के द्वारा, ओम सहस्र पुरुष सहस्र आच सहस्र पात्र इत्यादि के द्वारा स्वस्ति वाचन करके
ब्राह्मण को पुजारी के रूप में लगा दिए, सारे मंत्र बोल करके माता से पूजा करवाए। जब जग की पूर्णहोती हुई तो माता ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, अच्छा व्यंजन, रसीला, स्वादिष्ट और जो गुणशाली हो, सड़ा गला पुराना ऐसा नहीं, बढ़िया से बढ़िया जो पदार्थ हो सकते उन सब का भोजन कराए। इस व्रत से भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट रूप में उनको दर्शन दिया। माता दीदी ने जब भगवान को साक्षात दर्शन किया तो एकदम से हड़बड़ा गई कि प्रभु मेरे सामने मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए, साक्षात दर्शन दे लो। देख करके एकदम से उनकी कंठ अवरुद्ध हो गए, माता कुछ बोल नहीं पा रही। 5 मिनट तक तो केवल देखते ही रहे आचार्य जी के भगवान आप तो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले हैं, आप महान है, आप धन, ये सब जो उनकी महिमा को गान किए, आप उन पर प्रसन्न है। भगवान बोले कि देखो माँ, जो कुछ मुझको थोड़ा भी सुख देता है, थोड़ा भी भक्ति करता है तो मैं उसके वशीभूत हो जाता हूँ। जबकि बलि से वस्तु को लेकर के देवताओं को देना इतना आसान नहीं है, इसके लिए हमें बहुत कुछ परिश्रम करना होगा। लेकिन फिर भी मैं आपके भक्ति से प्रसन्न हूँ, आपकी भक्ति व्यर्थ न जाए, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा और आपके पुत्रों का राज आपस करवा दूंगा। और वही हुआ, समय बीता और आज के दिन भगवान पहले तो कश्यप के हृदय में आए और कश्यप मुनि के हृदय के माध्यम से अदिति माता के हृदय में आए और उन्हें माता पिता के रूप में स्वीकार करते हुए उनके सामने प्रकट हुए। और भगवान का जन्म मनुष्य जैसा साधारण जैसे बालक होता ऐसा नहीं होता, वो अपने स्वरूप में प्रकट होते, माध्यम बनाते, उनके अनुभव कराए कि मैं आपके हृदय में आया और आपके हृदय से बाहर प्रकट हुआ। और इसलिए उनको यह अनुभव कराया कि उनमें वात्सल्य भाव है। माता उन्हें पुत्र के रूप में देख रही है, पिता उन्हें पुत्र मानता है, इसलिए उनका अनुभव हो कि मैं सच में मैं उनका पुत्र हूँ, जिससे उनका स्नेह ममता और गाढ़ा हो जाए। इसलिए ऐसा अनुभव करते हुए प्रकट हो गए। पहले अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया, मैं वही हूँ जिसने वचन दिया था आपको पुत्र बनने का। बाद में छोटा रूप देकर कहीं फेमस हो तो कैसा भगवान, भगवान तो 6 फुट लंबे, बढ़िया हाथ पैर, बड़े बड़े अजानु लंबे भुजा इत्यादि, ये भगवान के वास्तविक रूप है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत अनंत रूप आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, जो सुंदर रूप धारण के बड़ा पीड़म नटवर को कैसा उनका रूप है। और ये जो रूप जब धारण करेंगे बहुत छोटा, तो कहीं छोटे रूप देख करके धोखा न हो जाए, मन में एक भाव में आ जाए कि ये भगवान से क्या है। इसलिए पहले उन्होंने दिख बतला देख वही और उस रूप को दिखाते के साथ तुरंत चमत्कार करते हुए वामन का रूप में प्रकट हुए। बौना जिसको बोलते, वामन मतलब बौना। उनका हाइट 2.5-3 फुट के आसपास है, लेकिन बौना होने पर ही बहुत सुंदर, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे मुंह, छोटे छोटे उनका शरीर, पेट सब छोटे छोटे, और छोटे छोटे में बहुत सुंदर लगता, क्योंकि सुंदर व्यक्ति ऐसी व्यवस्था में बड़ा हो छोटा हो वो सुंदर ही लगता। और भगवान अति सुंदर, ऐसे बटू वामन को देख करके जितने ऋषि मुनि थे बड़े आनंदित थे। ऐसा रूप तो पहले कभी देखा ही नहीं, तो अद्भुत रूप, चमत्कार। तम बटू वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय, वहां पर जितने भी ऋषि लोग थे, महर्षि लोग,
भृगु, अत्रि, तुला, कर्तु इत्यादि, मरीचि, पुलस्त, अंगिरा, ऐसे जो 7 ऋषि हैं, ये सब महर्षि लोग और जितने बड़े बड़े ऋषि सब बड़े प्रसन्न हुए। और कर्माणि कार्यामासु पुरस्कृत प्रजापति, कश्यप जी को आगे लाइए, चलिए चलिए प्रभु आप आगे चलिए, आप पिता हैं, इसलिए सारे संस्कार का अधिकार आपको प्राप्त है, आप इस बालक का संस्कार करिए। तो प्रजापति कश्यप मुनि आगे आए और ऋषि लोग उनसे संस्कार करवाए। जो जन्म का जो संस्कार होता है कर्माणि कार्यामास, उनका स्नान कराया गया, अभिषेक कराया गया। जब हम करेंगे थोड़ी देर में, अभिषेक समय हो रहा है, अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद में माता ने उनको एक कॉफिन दी, क्योंकि मांगने आए, बोल दिए थे कि मैं मांग करके लाऊं, लड़ करके नहीं ला सकता। आपके पुत्रों का राज लड़ करके लौटाना बड़ा मुश्किल है, तो मेरा भक्त है, प्रहलाद का पोता है, सीधे सीधे उसको मार नहीं सकता, लेकिन वो बड़े दयालु है, बड़े दानी है, बड़े उदार है। जब मांगने जाओ तो मना नहीं कर सकते, और कैसे भी आपके पुत्रों का राज मिल जाए, यही तो इसलिए मांगने का इनका वेश बनाया गया। एक भिखारी का जो वेश होता है, भगवान ने वही वेश बनाया। कॉफिन पहने और उसके बाद में एक जट्टू का रूप, ब्राह्मण का रूप, ब्रह्मचारी बन के बाहर बनना चाहिए। ब्रह्मचारी का पहला संस्कार क्या है? उसे मंत्र दिया जाता है, गायत्री मंत्र, जो ओम वाला जो सूर्य भगवान जो उसके एक प्रकार के देवता माने गए, तो सूर्य ने उस मंत्र को प्रदान किया। सूर्य ने गायत्री मंत्र बोले, बृहस्पति जी आए उनके गुरु जी, और जब वो पवित्र उनको पढ़ना है। और चंद्रमा हाथ में दंड लेके आए, ब्रह्मचारी के हाथ में डंडा होना चाहिए, चंद्रमा ने दंड प्रदान। कश्यप ऋषि ने कमर में मेखला मुंजा बांधा, एक प्रकार के बेल्ट होता है। पृथ्वी देवी ने मृग चर्म दिया, मृग का स्किन, हिरण का स्किन, उसको ऐसे ऊपर डाल दिए, पुत्रिया की तरह कपड़ा में मृग चर्म को लगा दिया। और ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, जल से भरा हुआ। सरस्वती जी ने माला दिया, और पूरे जो ट्रेजर है वो खाली एक भिक्षा का पात्र लेके आए। अब बोला कि सब खाली है, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि सब लूट चुका है। मैं नाम का कुबेर हूं, लेकिन संपत्ति नहीं, खजाना नहीं। बामन को खाली एक झोला दे दिया, ले लो, इसमें भर के ले आ। भाई है, क्योंकि बामन उनका माता के गर्भ से जन्मे, अदिति के पुत्र, इसलिए सबके भाई हो गए। और छोटा भाई तो बड़े भाई लोग इनसे डिमांड कर, उन्होंने भिक्षा का पात्र दे दिया और वो खाली दिया। तो पार्वती जी, जिसको अन्नपूर्णा कहते हैं, अन्नपूर्णा ने बोला कि घर से खाली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शुभ नहीं माना जाता है। अगर पात्र है तो पात्र में कुछ द्रव्य होना चाहिए। ये खाली पात्र दे दिए तो खाली जाएंगे तो खाली ही रह जाएंगे, वहां भी नहीं कोई देगा। खाली में कौन देता है? किसी के पास कुछ हो तभी उसको मिलता है, बिल्कुल अपने पास कुछ नहीं है तो कोई देता नहीं। समझ लो, कुछ लेने के लिए अपना विद्या, बल, बुद्धि, चमत्कार दिखाना होता है।
फालतू आदमी को कोई देना नहीं चाहता। दे दूंगा क्या मान लेगा, सिगरेट पी लेगा, बीड़ी खा लेगा, क्या दारू पी लेगा, मांस मदिरा सेवन करेगा। क्योंकि दान सत्पात्र को देना हो, दिया जाता है सत्पात्र। तो कहीं बड़े के पास जाएंगे, बड़े में इसको तो कोई दिया नहीं, इसका मतलब पात्र नहीं है। मतलब अच्छा व्यक्ति ने योग नहीं, इसमें उसको कुछ मिला ही नहीं, और जब कुछ नहीं मिला तो हम भी उसका पात्र करूँ। इसलिए इनके पात्र में कुछ होना चाहिए जिससे पता चले कि इसको पहले भी लोग दिए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, पूज्य ब्राह्मण है, पूज्य ब्रह्मचारी है, इसको लोग मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इसलिए घर से पूजा होनी चाहिए। तो पार्वती जी ने उनके भिक्षा पात्र में कुछ भिक्षा प्रदान किया, भिक्षा पात्र भर दिए, और आकाश में स्वर्ग देवताओं ने छाता दिया, छाता लगाए, डंडा उठाए, कमंड उठाए, बगल में झोला टांगे, और बलि के वहां पर चल पड़े। बलि के यहाँ जब जा रहे हैं तो इनका तेज बढ़ गया, क्योंकि तो सब ने संस्कार किया, सब ने आशीर्वाद दिया, सब ने इनको वस्तु प्रदान की, और छाता लगा करके और जगहों पर भी धारण करके और सारे कर्म आदि पहन कर पहुंचे वहां पर। तो ऐसे चमक रहे थे मानो सूर्य की चमक हो, मानो अग्नि हो, मानो चारों कुमार, जो चार कुमार के सनक सनंदन होगी, ऐसे वामन भगवान की तरह। तो ऐसे लग रहा था कि कुमारों में से कोई है, न कि सूर्य है, न कि अग्नि है। दूर से देख करके बलि और बलि के जितने भी सभासद थे, जितने भी बड़े बड़े वहां विद्वान लोग बैठे थे, सब खड़े हो गए। तो बड़ा व्यक्ति आ रहा है स्वागत पर, क्योंकि नियम होते बड़े लोग के आने पर अगर खड़ा ना हुआ जाए तो प्राण उसके निकल जाते, क्योंकि प्राण ऊपर को उठने लगता है। तुरंत खड़े हो जाओ और नहीं तो दंडवत प्रणाम करो। तो जो प्राण ऊपर को भाग रहा है मस्तक को, तुरंत शांत होकर स्थिर हो जाए। तो बड़े लोग आने से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, तुरंत उनको शांति के लिए अपना सिर जो है उनके मस्तक के अंगूठा, अपने मस्तक उनके अंगूठे पर रख दो, चरणों में रख दो, तुरंत शांति मिलेगी, प्रसन्नता है। सब खड़े हो गए, सबने प्रणाम किया, और जब पास में आए तो देख करके बोले तो कोई बटू ब्राह्मण, और इनके भिक्षा पात्र को देख करके समझ गए कि मांगने वाले हैं, मांगने के लिए आए, देखने से पता चला। लेकिन बोल नहीं रहे, लेकिन आंखों से चेहरा देख करके लग रहा है कुछ चाहिए। बलि महाराज के हाव भाव से समझ गया और बोले कि हाँ हाँ मैं समझ रहा हूं, आप मांगने आए, लेकिन मांग नहीं रहे। मांगो क्या चाहिए, कोई संकोच नहीं, क्योंकि आप बलि के सामने खड़े हो। पहले तो बलि महाराज ने उनको बैठाया, आसन दिया, चरण धो धा करके चरणों तक लिया, और बोले हमारा कुल परिवार खानदान पूरा परंपरा सब पवित्र हो गए। आप जैसे महापुरुष जिसके यहाँ पर साक्षात पर पधार जाए, उनका क्या करना शेष रह गया। लेकिन मैं तो सब प्रकार से प्रसन्न हूँ, लेकिन आप कुछ चाहते हैं बोलने, बोलिए। 2-3 बार बोले, कुछ नहीं बोले, तो बलि महाराज बोले कि शायद संकोच में नहीं बोल रहे, लेकिन वो नाम बताने लगे, ये चाहिए, ये चाहिए। तो जिसको जो चाहिए वो नाम सुनेगा तो अपने हाँ हाँ ये चीजें तो यही उनको, जैसे बालक होता है ना, बालक कुछ नहीं मांग रहा हो तो बड़े लोग कहते क्या चाहिए तुमको, बड़े ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसे दिखाते। अब बच्चा को जो रुचि होगा वो फट करके बोलते। तो उनके साथ ही एक बलि महाराज इस तरह से कहने लगे, पृथ्वी चाहिए, कौन सा देश चाहिए? तब वामन भगवान बोले कि आप प्रहलाद के पोता है,
और आपके पूर्वज हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप हुए। ये लोग जीवन में केवल दिए, इनकी जस आज भी है। मालूम है जब हिरणाक्ष भगवान को ढूंढ रहा था, कहाँ चला गया, मैं इसको पकड़ लूंगा, तो भगवान उसके बल और उसको देख इतना डर गए कि डर के मारे उसके हृदय में समा गए, हृदय में छुप गए। उनके हृदय में बैठे थे और इधर उधर ढूंढ रहा, बड़े मुश्किल से मिले और दोनों में बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध में बड़ा ने भले हिरणाक्ष को मार दिया, लेकिन आज ही बड़ा भगवान जब युद्ध को याद करते हैं तो आज उनके रंगोटे खड़े हो जाते हैं। बोले ऐसा युद्ध करने वाला हमको आज तक कोई नहीं मिला। बड़ा परिश्रम से मारा, बहुत मुश्किल से मारा उसको, इतना जल्दी हाथ नहीं आ रहा। तो भले उन्होंने उनका वध कर दिया क्योंकि इनका जीत होता, लेकिन जीतने के बाद भी भगवान उनकी शौर्य को बल को आज भी याद करते हैं तो वाह वाह करते हैं कि ऐसा वीर भूतों ने भविष्य। और उनके बड़े भाई जो हिरण्यकश्यप, उनकी क्या महिमा बताऊं। और उनका पुत्र प्रहलाद तो तुम्हारे दादाजी हैं, तुम्हारे पिता विमोचन, और सबसे बड़े तुम्हारे गुरु जी शुक्राचार्य बैठे हैं। ये सब बड़े दार लोग हैं, महान लोग हैं। यहाँ पर बावन भगवान ये दिखा रहे हैं किसी से कुछ मांगना हो तो सबकी प्रशंसा करो, सबको पहले प्रशंसा में बांध दो। और प्रशंसा झूठ मूठ के नहीं कर रहे, सचमुच में कर रहे। और सबकी प्रशंसा करते करते गुरु की भी प्रशंसा। देखिएगा अगर शुक्राचार्य जी को जय जयकार नहीं करूंगा तो ये कहीं कहीं बाधा डाल देगा लेने देने में। बोले आपके गुरु जी जैसे हैं, ऐसे गुरु का चेला आपके पास में क्या असंभव है, कुछ भी कर सकते। तो क्या गुरु जी आपके मेहरबान आपसे चक करवा रहे हैं, नर्मदा के तट गुरु कच्छ में आपकी महिमा को जगत में फैला रहे हैं, ऐसे आपके गुरु। लेकिन नीति ये कहती है कि व्यक्ति को जितना जरूरत उतना लेना चाहिए, क्योंकि कामना से कभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, लेने से इच्छाएं समाप्त नहीं होती। इसलिए व्यक्ति उतने लेना चाहिए जितना जरूरत हो। आप बहुत बता रहे ले लो ले लो, लेकिन हमें उतना नहीं, हमें जितना प्रयोजन उतना दे दीजिए। केवल 3 पैर जमीन दे दीजिए, जिससे मैं बैठ करके भजन कर सकूं। तस्मात् पादान में जावत प्रयोजन। बलि महाराज बहुत जोर से हंसे, बोले इतना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, पूरे हमारे वंश परंपरा की प्रशंसा करते हो, इतना ज्ञानी हो, हमारे परिवार के बारे में इतना जानते हो, लेकिन फिर भी पाना मांगने के समय ठीक से मांग नहीं पा रहे। भगवान बोले नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अगर 1 राज देगा तो 10 राज चाहिए, 100 राज चाहिए। इससे आदमी की इच्छा बढ़ती है। किसी के पास अगर 100 रुपया नहीं है, 50 रुपया तो काम चल जाता है, लेकिन 50 रुपये तो 100 होता है तो सोचते 200 हो जाए, 500 हो जाए। और जब ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो सोचता है और ज्यादा हो जाए, वो बढ़ाते चला जाए। कि लोग बड़े खतरनाक होते। और मैं संतोषी हूँ, विशेष करके ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, क्योंकि तो संतुष्ट विप्र का बल और तेज बढ़ता है। संतुष्ट विप्र तेजो भी बढ़ जाते। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं हो, कितना भजन करे, कितना कुछ करे, उसका तेज बढ़ता नहीं। संतोष एक बहुत बड़ा धन है, और जिसके पास है वो साथ से प्रसन्न रहता है। उसके पास जितना उसमें खुश रहता है वही होना चाहिए, ऐसे उसको पता है। तो मैं संतोष को अधिक मानता हूँ। संतोष से व्यक्ति को शांति मिलती है। जितना उतना में अगर खुश रहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे, और अगर असंतुष्ट है तो बहुत खुश है तो भी दुखी रहेंगे। पूरा विश्व का उदय से अस्त तक राज, जहाँ से सूर्य उगता है डूबता है वो मिल जाए, पूरा विश्व और अरब खरब जितना भी धन हो सकता है सब मिल जाए। लेकिन संतोष नहीं है,
तो सब रहने के बाद भी वो कंगाल। तो और तुम मुझे दे दो। आज जो भी तुम्हारे पास है बातों बातों में बता रहे हो, 3 पैर लेने नहीं आए, पूरा लेने आए। शुक्राचार्य सुने और अपने शरीर से पूरा आकाश को नाप लेगा। ये भगवान विष्णु है, अदिति नंदन। ऐसा विरोचने साथ भगवान विष्णु अभय कश्यप आदित्य जाता देवा नाम कार्य साधे। कश्यप आदित्य के पुत्र देवताओं का काम बनाने के लिए आए। तुम्हारे पास 2 पैर देने का भी स्थान नहीं बचेगा, तीसरा तुम कहाँ से लेगा? इसमें जहाँ पर अपना सब कुछ लूट जाता हो, सब हरण हो जाता हो, वहां पर झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। ये नीति कहती है कि व्यक्ति को कितने अवसर पर झूठ बोलना पड़े तो बोल देना। जैसे स्त्री हास परिहास में, जैसे कोई माता है मान कर लिया, नाराज है, उसके पति के परिहास में बोल देता है खुश हो जाओ, अभी हमको भोजन करा दो, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम को सोना के हाथ लेके आऊंगा। तो जो रसोई नहीं बना रहा था, जो सेवा नहीं कर रहा था, परिहास में सुना सोने का हार मिलेगा तो तुरंत रसोई बना के गरम गरम भोजन करा दिया। और शाम को आया तो खाली हाथ आया, बोला सोना के हार कहाँ है? तो बोले थे हार लेके आऊंगा। बोला चिंता मत करो, ला रहा था लेकिन बस दुकान में जा नहीं पाया, भीड़ था, ट्रैफिक था, कल ले आऊंगा, आज अच्छा से भोजन करा। ऐसे कर करके कई परिहास में झूठ बोलने से झूठ नहीं माना इत्यादि बोले। स्त्री से नर्म, स्त्री से नर्म विवाद, नर्म के समय परिहास में, विवाह में, और गो ब्राह्मण की जब हत्या हो रही, हिंसा हो रही हो, अपनी हत्या हिंसा हो रही हो, या अपना धन नष्ट हो रहा हो, द्वितीय अर्थ है, इस समय झूठ बोलने से पाप नहीं लगता दोस्तों। स्त्री सुंदर विवाह विद्या प्राण संकटे वो ब्राह्मणार्थ हिंसाया ना निर्तक साथ जुगुप्सित। लेकिन बलि महाराज बोले गुरुजी हमने वचन दे दिया है बाबा, और हमने ब्रह्मचारी को वचन दे दिया कि मैं आपको दूंगा, और उन्होंने बोला ठीक है मैं लूंगा। यहाँ पर तो पूरा तय हो गया देना नहीं, क्योंकि देने वाला भी तैयार और लेने वाला भी तैयार। अगर वो बोलते मैं नहीं लूंगा तब भी कहता चल उन्होंने लेना अस्वीकार किया, तब मैं भाग सकता था कि आप लेना नहीं चाहते मैं आपको दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं देने के लिए हाँ कर दिया और लेने के लिए हाँ कर दिया। अब तो पक्का हो गया, अब झूठ बोलूं। गुरुजी संसार के जितने भी वस्तुएं आते और चले जाते, ये राज पता नहीं कितने के पास आए,